जहाँ सूरज वहाँ प्रकाश, जहाँ चांद वहाँ चांदनी, जहाँ सागर वहाँ लहरें, जहाँ पुष्प वहाँ महक, और जहाँ मिस्टर राज सिंह गहलोत वहाँ पर राजा ही राजा। उनका दिल इतना बड़ा और उनका मन उतना ही गहरा कि सागर की लहरें उन्होंने इस एरिया में बहुत ही सौंदर्य से लहराते हैं। हम सबको उनको, हम सबका उनको नमन और उनको शुक्रिया। आजकल के ज़माने में बहुत चंद लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं who are willing to give themselves for the society. I have been into education for the last 49 years, and I have hardly ever found somebody who was actually practicing what he was preaching or saying. Schools have been commercialized, education has been commercialized, but I think even when Hillgrove turned into ambience, Mr. Raj Singh Gehlot completely stuck to his way of thinking and said, all my kids who are there will be studying here. I don't care, they deserve the best as well. And what we saw as an outcome just now, I think is a vision, as the principal ma'am said, turned into reality. Thank you, sir, for creating this wonderful place for the society and the children. आप सहमत हैं इससे? आप सब सहमत हैं? फिर जहाँ मिसेस गहलोत वहाँ शीलता, ठीक है, उनका नाम भी शीला जी ही है। और जहाँ जीनी वहाँ कौन कौन, और वहाँ अनु, और वहाँ शैलेश, और वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ। इससे भी आप सहमत हैं? It's high time now that we start looking at this school as a school with a difference, right? One great difference is that this school is actually meaningfully, rightfully, correctly, honestly, sincerely meant for your children. So this is your school. While Mr. Gehlot, I have given him the crowning glory, yet when you are happy, then I think Mrs. Jeannie Aibara's smile will not know where to stop. She already smiles from ear to ear, then she will be smiling around the head. So I congratulate each and every child who has taken part this morning, and what they have achieved in such a short time as the first Founders Day, I think is absolutely memorable and can be written in words of gold, in letters of gold. Please do so, and I'm sure it will be done. Genie is magical. When I was small, I read a poem called Genie with a Magic Touch, and I think that magic touch can be seen here. I did bring in Anu and Shailesh also from DPS. DPS sometimes cries for losing them, but then I see you happy, so it's okay, the balance is made. Well, I do not want to stand here after such a beautiful performance and be giving a big bhashan. As I have always said, bhashan पे लगा दिया जाना राशन. लेकिन कुछ बातें मेरे मन में हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, अगर आप सुनना चाहेंगे। तो मेरे अनुसार हम अपने को, अपने बच्चों को, अपने पूर्वजों को, सबको 4 भागों में बांट सकते हैं, जिस पे हमें नज़र देने की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हमें ज्ञान लगाने की ज़रूरत है, और उसमें सबसे पहला जो है वो आपका शरीर।
शरीर से मैं ये नहीं कहती कि आपकी ब्यूटी इन द सेंस ऑफ फैशन and so on. By this I mean you should be very healthy. Your children should be very healthy. If a child is healthy, he will be able to perform much better. उसकी शारीरिक शक्ति बहुत बढ़िया होनी चाहिए, उसका जो खान पीन है ठीक होना चाहिए, उसकी जो एक्सरसाइज है बहुत रेगुलरली होनी चाहिए, उसमें आप भी विराजित हैं, क्योंकि we need a healthy society, we need a healthy country, and this healthy country can only be healthy if both the adults and children are healthy. The second part, which is equally important, शरीर के बाद है आपका मन. आपके मन में किस तरह की इमोशंस हैं, किस तरह की फीलिंग्स हैं, किस तरह की खुशियाँ हैं, आप उस पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको कितना खो सकते हैं, आप कितने दूसरों के लिए आंसू बहा सकते हैं, आप कितना दूसरों की खुशियों में खुशियाँ मना सकते हैं, ये सब आपके मन की बात है. लेकिन मन को एक तीसरी चीज़ से कंट्रोल करने की सदा ज़रूरत रहती है, और उसको मैं कहती हूँ बुद्धि. शरीर, मन, बुद्धि. बुद्धि अगर आपकी अच्छी है तो आप हर चीज़ को अपने हाथ में जकड़ सकते हैं. और स्कूल्स में आजकल बुद्धिमान आई होप बना रहे हैं, पर नॉलेज खूब दी जा रही है. क्या आईपैड, क्या आईपॉड, पता नहीं, टैबलेट. जैसे टैबलेट हम दवाइयाँ खाते हैं, उसी तरह से बुद्धि को भी खिलाया जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार की जा रही है. जब हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, टीवी के सामने बिठाया जा रहा है, और क्या तरह तरह की सेंसेशनल एजुकेशन भी हो रही है, उसकी भी ज़रूरत है. We want to live in this 21st century with success, but at the same time we need the right kind of thinking. For me, mind is an ocean of thoughts, and you have to have thoughts which can control your mind. ठीक बात है. आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि सब बैलेंस में होने चाहिए. लेकिन चौथी चीज़ जो इन तीन बातों को एक्सप्रेस करती है वो है वाणी, स्पीच. आप कैसे बोलते हैं एक दूसरे से, आप बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, अपनों के साथ. ये नहीं कि शो मी द मैन एंड आई विल शो यू माई वर्ड्स. कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाता है तो आप उसको बैठिए साहब, खाइए साहब, और कोई ऐसा वैसा होता है जो आपका काम कर, चलो चलो जल्दी जल्दी खाओ, खाना खाओ, काम करो. हर चीज़ में हम अपने को बदल लेते हैं. लेकिन क्या वाणी की शुद्धि, उसमें प्रेम, और उसकी जो आपकी मन और बुद्धि और आपके विचार हैं उतने ही अमृत जैसे रहें, तो फिर मज़ा आ जाए. दफ्तरों में हम लोग जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं हम भीख मांगने आए हैं. आज हमारे CBC साहब चेयरमैन ने भी यही कहा कि आपको क्या एक्सपीरियंस होता है वहाँ जाके. तो हम जो बच्चे आपके तैयार कर रहे हैं यहाँ, वो वैसे कर रहे हैं, who will speak sweetly, who will not be rude, they'll be nice and they will be cultured. लेकिन एक बात जो हमें बहुत चिंताजनक लगती है वो ये है कि ज़माना, आसपास का इन्फ्लुएंस, मीडिया का, प्रिंट का, इलेक्ट्रॉनिक का, जिस एडवर्टाइजिंग का जिस तरह से इन बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके लिए हमें बहुत से परिवर्तन लाने हैं. वो परिवर्तन सबसे पहले हमें अपने आप में लाना है. हम अपने बच्चों के सामने किस तरह का उदाहरण रखते हैं, जिससे कि जो मीडिया का उदाहरण है वो कम और हम ऊपर. If the parents are good models, this world will be beautiful. मैं तो कुछ ये कहने वाली थी, जहाँ पेरेंट्स वहाँ परिवार. और इस देश में सबसे बढ़िया बात जो है वो है हमारे देश की प्राइड, वो है हमारे पेरेंट्स, और वे है उनका परिवार.
और आपके बच्चे हैं आपका संसार। तो अगर संसार उस परिवार में खुश है तो आप भी खुश और हम भी खुश, और एम्बियंस तो सदा ही खुश। शुक्रिया। थैंक यू मैम।